Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So today we are covering corporate governance forums. It's a very short chapter, but every time one question comes from this chapter, at least for 5 marks. So let's understand what do we have to do here in this chapter. We have got corporate governance forum. So the ICSI, what ICSI has a stand for corporate governance in India, and there are other bodies who are taking care of corporate governance, who are making steps to initiate corporate governance, making a basic curriculum about it, and that is all here we have got to study of these institutions. So let's start first with the Institute of Company Secretaries of India. Let's understand what they have for us. So, firstly, it says that the globe has become a borderless village with soaring business activities across the border, triggering the need for exposuring best governance practices in order to ensure sustainability and growth of business organizations as well as protection of the interest of stakeholders. So, let's understand what ICSI have for us. Firstly, what is the vision and mission of our ICSI? The vision of our ICSI is to be a global leader in promoting good corporate governance. To be a global leader in promoting good corporate governance, and the mission is to develop high caliber professionals like us, फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो बेसिकली फंडा ही आईसीएसआई का ये है, विजन ही यही है कि ग्लोबल लीडर बनना है हमको, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए ग्लोबल लीडर बनना है. इन लाइक स्काई इज द लिमिट वी से. सो ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मिशन है आईसीएसआई का टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स like us students, facilitating good corporate governance. Listen, I'm gonna say this corporate governance in short form, COGO. All right, so let's understand this. So the application of best management practices compliance of law, the ICSI after extensive research has taken a giant leap in defining corporate governance as. So ICSI has defined corporate governance as, after so much of research, it has defined the corporate governance as the application of best management practices. मतलब basically बोलने का मतलब ये है, the application of best management practices, compliance of law in letter and spirit, and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. कहीं ना कहीं इसका घुमा फिरा के यही मतलब हो रहा है कि बेईमान मत बनो, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करो, एथिक रखो, इंटीग्रिटी रखो. डजेंट इट वॉन्ट टू से दैट? अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. दी एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब वो बोलने की ऐसी से बोलने की कोशिश कर रहा है भाई. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो, मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंपनी अपना रहा है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है दी एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस कर रहा है लॉ का इन लेटर एंड स्पिरिट, एंड अध्ययर कर रहा है एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी for sustainable development of all stakeholders. I'll repeat it one more time because you have to write this in exam. The definition by ICSI after extensive research, what they have come to the conclusion is that corporate governance is nothing but the application of best management practices, compliance of law in letter and spirit, and adherence to the ethical standard for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. सबसे पहले देखते क्या बोला है आईसीएसआई ने. इनिशिएटिव क्या लिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए? तो बेसिकली आईसीएसआई ने कोगो के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खड़ा किया हैदराबाद में. क्या किया है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए, कहाँ बनाए? हैदराबाद में बनाए. ठीक है. देन वी हैव गॉट ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च एंड सेंटर बनाने के लिए. रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है टू फॉस्टर एंड नर्चर गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, to foster and nurture governance research and training, which is with the objective of fostering and nurturing research initiative among member of company. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नेंस को अपने को बढ़ाना है, गवर्नेंस रिसर्च को बढ़ाना है बाय इनिशिएटिव्स अमॉन्ग बाय रिसर्च इनिशिएटिव्स अमॉन्ग द मेंबर्स. सेकेंड,
ICSI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, आपको ये लर्न नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ सकते हैं कि ICSI ने क्या किया है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में खोल दिया है, ताकि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ही उन्होंने रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला हैदराबाद में। ICSI जो वो नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस देती है इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेशनल अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस देती है। ICSI का जो मिशन एंड विजन ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो एक्सेलेंस अवार्ड भी तो वही देगी। तो CS जो है, ICSI जो है, नेशनल अवार्ड देती है फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसको किसको मिल चुका है, तो टाटा स्टील, ब्लू स्टार, महिंद्रा, अपोलो, देर आर मैनी मोर कंपनीज। गवर्नेंस, द ICSI in 2001, let's see, I hope it's visible. Okay. So, the award, it was instituted by ICSI in 2001 to identify and foster the to reward the culture and evolving global बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस अमॉन्ग इंडियन कंपनीज। तो ऑब्वियसली हम अवार्ड ही इसलिए देते ताकि हमारा काम अच्छे से हो, इसीलिए अवार्ड दिया है। नेक्स्ट, ऑलराइट, फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कोर्स करिकुलम। हमारे कोर्स करिकुलम में ICSI ने GRMC का सब्जेक्ट डाल दिया, तो उन्होंने वही बोलने की कोशिश की कि हम अपने स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय पुटिंग द सब्जेक्ट लाइक GRMC दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स इन अवर कोर्स करिकुलम इन प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है, अभी तक समझा क्या बोला कि अवार्ड दे रहे हैं, कोर्स में डाल दिया है CS प्रोफेशनल के, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बना रहे हैं हैदराबाद में। पोस्ट मेंबरशिप उन्होंने ICSI लॉन्च पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पोस्ट मेंबरशिप, जब आप मेंबरशिप आपको मिलती है, तो पोस्ट मेंबरशिप भी क्वालिफिकेशन कोर्स रखे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, बिकॉज उनका मिशन एंड विजन ही वही है, तो वो लोग रखेंगे ना, दे विल वर्क आउट ऑन दैट, राइट। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सेक्शन 118 क्लॉज 10 जो है कंपनीज एक्ट का, वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 and 2 मैंडेट करता है कंपनी को फॉलो करने के लिए, वेयर 10 स्टैंडर्ड अभी तक के इशूड हुए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूट जनरली पब्लिकेशंस भी करता है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ गुड गवर्नेंस। Directors development and capacity building program. So recognizing the leadership development in boardroom is the key driver to better governance. Recognizing that leadership development in boardroom is the key driver to better governance. मतलब better governance चलाने वाला क्या कोई मशीन है क्या? बताओ ना मुझे, कोको चलाने वाला कोई मशीन है क्या? कोको, आई एम टॉकिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई मशीन चलाएगा क्या? कोई आके बाहर से डिक्टेट कर सकता है क्या, ये करना है, ये करना है, ये करना है? वो लोग कर सकते हैं, बट एक्चुअल गवर्नेंस जो है वो कंपनीज में कौन लाएगा? वो जो बोर्ड में जो बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना तो उसके ही हाथ में, वो चाहे तो गेम भी खेल सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो are you understanding the fact that the leadership development in boardroom is a key driver to better governance? So the institute organizes directors development program. तो ICSI जो है वो डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाती है। इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्ट दिस प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड टू स्ट्रेंथनिंग द स्पेशलाइजेशन इन कोगो। तो अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक देखा कि भाई उसने ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाए हैं हैदराबाद में, एंड नेशनल अवार्ड दिया है एक्सेलेंस इन नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कोगो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे कोर्स करिकुलम में डाल दिया है GRMC सब्जेक्ट के हिसाब से। पोस्ट मेंबरशिप वो लोग क्वालिफिकेशन कोर्स कराते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन 118 क्लॉज 10 1 and 2 तो मैंडेट कर दिया है, हावेवर अभी तक के SS 10 तक इशूड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिकेशन, वो लोग पब्लिकेशंस भी करते हैं टू इनकलकेट द कल्चर ऑफ गुड कोगो। Directors development and capacity building programs. Now just I've told you that recognizing that leadership development in boardroom is a key driver to corporate governance. So the ICSI has organized directors development programs throughout the country, throughout India and abroad, to strengthening the specialization in corporate governance. ICSI का मेन मिशन विजन ही ये कि उसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लीडर बनना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए। तो अगर उसको वर्ल्ड वाइड बनना है, सो डोंट यू थिंक दैट दे वुड ट्राई टू स्पेशलाइज थ्रू आउट दीज कोर्स थ्रू आउट इंडिया एज वेल एज अब्रॉड? ऑलराइट, investors education and awareness. So far the institute has organized more than 4,500 of such programs, booklets to educate investors in Hindi, English as well as other regional languages. Investors को educate करना and awareness फैलाना about good corporate governance. For that purpose they have, as
As of now, they have organized more than 4,500 of such programs and booklet भी दिया है educate करने के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेज में. तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई वो लोग ट्रेनिंग एंड सेंटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, गुड गवर्नेंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैदराबाद खोला है. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैदराबाद, वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं एंड ट्रेनिंग कर रहे हैं. यहाँ पे देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर, यहाँ पर है आईसीएसआई का जो सेंटर है, सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च, सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ऑलराइट, फिर वही बताया मैंने आपको, अवार्ड दिया है, जेआरएम से अपने सब्जेक्ट में डाल दिया है. पोस्ट मेंबरशिप भी ट्रेनिंग दे रहे हैं. पोस्ट मेंबरशिप भी क्वालिफिकेशन को पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस डाल दिया है मेंबरशिप में भी. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बता दिया मैंने आपको. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिकेशन बता दिया, पब्लिकेशन करे फॉर कल्टिवेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देन मेंबर डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रख रहे हैं क्योंकि वो लोग ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से करवा सकते हैं कंपनी में. इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस कर रहे हैं. देन आईसीएसआई रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क. ICSI, after a detailed study of COGO standards, principle and practices across the world, made its recommendation to strengthen. Do you think that ICSI can also recommend to strengthen the corporate governance framework? Because ICSI का mission and vision ही corporate governance से related है, तो after all उसकी पूरी life corporate governance में घूमेगी. That's what it says, that ICSI gives so much of recommendations to strengthen corporate governance and framework across the world. ये वाला पॉइंट छोड़. नेशनल पॉलिसी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो द एमसीए हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन कोगो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर आदि गोदरेज. The president ICSI was the member secretary convener. The concept paper prepared by ICSI was the base paper for discussion for this committee. The committee submitted its report which is articulated in the form of guiding principles of COGO. जो अपने को आता है ना पढ़ने के लिए, guiding principles of COGO क्या है टू द. तो ये बेसिकली 2012 में लाया था. किसने लाया था? एमसीए ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन कोगो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आदि गोदरेज. Customized training program, of course, customized training programs for regulatory bodies, customized program as per what sector they are in. बैंक है तो बैंक के हिसाब से, पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर के हिसाब से. फाउंडर ट्रस्टी ऑफ नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको हम बोलेंगे प्यार से एनएफसीजी. फाउंडर ट्रस्टी ऑफ नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, ये नेशनल फाउंडेशन आ गया. सो दी आईसीएसआई इज वन ऑफ द 4 फाउंडर ट्रस्टीज ऑफ नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलॉन्ग विथ एमसीए, सीआईआई एंड ICAI. The vision of NFCG is be a catalyst in making India the best in corporate governance practices. So can you see, every time we are just roaming around best corporate governance practices because it occurs in our mission and vision. So the founder trustee of national founder trustee, basically ये जो प्रोग्राम है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी फाउंडर ट्रस्टी में 4 लोग हैं, ICSI, ICAI, CII and MCA. So can we say that ICSI is one of the part of founder trustee of NFCG? Good. So we've got another which is founder member of corporate secretaries international association. Founder member, so ये जो अपना ICSI is also a member of corporate secretaries, company secretary यहाँ पे बोलते हैं, तो वहाँ पे corporate secretaries international association. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? Institute of company secretaries. They are saying corporate secretaries international association. It is basically an association. ICSI is founder member of corporate secretaries international association along with chartered secretaries, Institute of Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Africa, UK, Zimbabwe. So CSIA, which is Corporate Secretaries International Association, was launched in March 2010 and has issued 20 practical steps to better corporate governance. So basically, can we say that the ICSI is one of the member of corporate secretaries, founder member of corporate secretaries international association. They have issued in March 10, they have issued the 20 practical steps to better corporate governance.
ICSI is founder member of Corporate Secretaries International Association, along with what? Along with whom? So, Chartered Secretary Institution of Australia, Hong Kong, Zimbabwe, Singapore, Malaysia, UK. Can we see that? Linkages of international bodies. So, the institute has linkages with various international bodies involved in promoting corporate governance, such as World Bank, Organization for Economic and Cooperation and Development, International Corporate Governance Framework. ये वाला पॉइंट नहीं भी किया तो चलेगा, या फिर लिंकेजेस डाल के आप नॉर्मल भी बता सकते हो. वी आर गुड टिल वी हैव कवर्ड. सबसे पहले कि आईसीएसआई ने, देखो इसको ऐसे लर्न करोगे ना ईजी होगा, याद भी रहेगा कि अपने आईसीएसआई ने क्या किया है. ऐसे सोचो कि हम जो पढ़ रहे हैं आज, हम जो आईसीएसआई के अंडर पढ़ रहे हैं, आईसीएसआई का मिशन और विजन तो समझ में आ गया. आईसीएसआई ने अभी तक क्या किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. तो ये पूछो क्या क्या नहीं किया है, बिकॉज दे हैव फ्रॉम रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में खोलने के बाद वो लोग ने मतलब और भी क्या चीज़ें की. तो नेशनल अवार्ड दिया फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दे हैव डन नेशनल अवार्ड दिया है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च वाला हो गया. फोकस ऑन गुड गवर्नेंस इनको, मतलब फिर ये बोल सकते हैं कि आईसीएसआई ने हमारे सिलेबस में डाल दिया जीआरएमसी सब्जेक्ट. पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन में भी वो गुड गवर्नेंस का कोर्स डाल रहा है. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी इशू किए हैं आईसीएसआई ने. गुड गवर्नेंस पब्लिकेशन जो है वो इनकलकेट करता है गुड कल्चर ऑफ गुड गवर्नेंस. डायरेक्टर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, वो लोग बेसिकली डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे हैं, बिकॉज दे आर द ड्राइवर ओवर देयर इन द कंपनी टू जस्ट इम्प्लीमेंट दिस गवर्नेंस. Then investors education and awareness. So far, ICCI has constituted 4,500 or more of such programs, booklets दिया है educate करने के लिए. ICCI ने recommend किया है to strengthen corporate governance program, ठीक है. National policy बनाई है on corporate governance, ठीक है. कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी है बैंक और एनबीएफसीज और पब्लिक सेक्टर के हिसाब से. फाउंडर ट्रस्टी ऑफ नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. फाउंडर ट्रस्टी ऑफ नेशनल फाउंडेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिसका काम है, एनएफसीजी का काम है, विथ 4 अदर मेंबर्स विच इज़ आईसीएआई, एमसीए, सीआईआई, आईसीएआई, सी अदर मेंबर. एनएफसीजी का उद्देश्य ये है टू बी अ कैटलिस्ट इन मेकिंग इंडिया द बेस्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. देन वी हैव गॉट हियर the founder member of Corporate Secretaries International Association, with along with Chartered Secretaries Institution of Australia, Hong Kong, Zimbabwe, Singapore, Malaysia, UK, Africa. And in 2010 they have launched issued 20 practical steps to better governance, corporate governance. Then linkages of international bodies, you can learn this as per your deem fit. So we had done till here. We have covered just one thing, which is the Institute of Corporate Secretaries of India. I have taken time for this because this has been asked many times in exams, and we gonna cover these as well. So stay tuned for that. Thank you for your patience.